Viewers, you're watching the Explosive Exclusive. I'm Rahul Shivshankar and we have a big news break for you. Viewers, till now you have been told only one side of the story from Khargone. Politician after politician from the opposition is focused only on the bulldozing of houses belonging to those that have been deemed rioters by the state government. The other side of the story has never been told. The Khargone untold truth is going to be put out by Times Now right now. What do we know, viewers? We know that after a murderous mob pelted their homes and razed their shops on Ram Navami, the Ram Bhakts of Khargone have been living under a dark shadow of fear. And this evening, viewers, we are going to unspool the kind of intimidation and fear they have faced. Now, viewers, what have we been told? We have been told that the bulldozer has been communalized. But viewers, what we have never been told is that the talwar and tamancha that was wielded on the residents of Khargone, or at least a particular community of Ram Bhakts, viewers, has not been communalized. That's what we've been told. That side of the story has never been put out. Viewers, Times Now wades through the dust and rubble left behind by the riotous mob and brings you three chilling testimonies of why people want to flee their homes. Hear how the Hindu community was specifically targeted, their homes razed, and now they have decided that they will not live in fear anymore, that they will, in fact, leave their homes. And in their place, viewers, on the walls, you can see what has been scribbled. Ye makan bikau hai. We are putting our houses on sale. Viewers, this is the untold Khargone truth. Use the hashtag Khargone Untold Truth to comment on this story, to put your views forth on this story. But before that, viewers, listen to these three chilling testimonies. And after that, viewers, we're going to play out video evidence of what some of these individuals have gone through. But first, the testimonies. सर अब मैं यहाँ रहना नहीं चाहता हूँ। क्यों? सर ये विगत 90 से मेरे साथ हमारे साथ में बार बार ये घटना हो रही है, बार बार हो रही है। तो कौन लोग हैं जो इस तरह? अब पहले तो आपका नाम बताइए। मेरा नाम दुर्गेश पवार है। दुर्गेश पवार। तो कौन लोग हैं जो इस तरह की हरकत करते हैं? सर ये मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। सामने ये अभी जो प्लाट कटा है, यहाँ पे ये नए सिरे से लोगों बसे हैं। अच्छा। और ज्यादातर यही लोग परेशान। तो कई लोग ऐसा देखा है हमने, कई लोग लिख रहे हैं मकान। वो इसी कारण सर अब यहाँ से इनकी आबादी ज्यादा हो गई है और ये वार त्योहार कुछ भी होता है तो भय का वातावरण बन जाता है। ये बताओ कि क्या किन लोगों ने ये सब किया? पूरा तहस नहस देख रहे हैं हम, पूरा प्रशासनिक हमला। पूरे मोहल्ले वाले आ गए थे, एकाएकी का पेट्रोल आखिरी में मेरे घर को जलाया। अच्छा। और मेरे बच्चे और हम परिवार। कौन लोग हैं ये? कौन लोग हैं ये सब मोहल्ले के परिवार वाले, सब मोहल्ला का लोग थे। हम इनका सारा से अंदर छिपा रहे कि भाई ऐसा नहीं होगा, पर इन्होंने आखिरी में हमारे घर पर एकदम पेट्रोल डाल दियो, आग लगे। तो उधर से क्या पुलिस वाले भी उनके नजर पड़ी क्या मालूम, उन्होंने हमारे घर को बुझायो भी और हमारा ढोरने का भी छोड़ा कि भाई किसान मनुष्य टप्पर जड़ोगे ढोर जड़ जाएगा, तो उन्होंने बचा दियो उन्हें। अनीता, ये बताइए कि आपको पता है क्या किसने क्या कुछ किया? ये यहाँ के मोमिडन आते हैं, सब यही लोग आते हैं और हर बार हमारा एक बार नहीं 4 बार जब भी कर्फ्यू लगा, जब भी हमारे घर उनका नुकसान हुआ, यहाँ से लगा कि ये 4-5 घर उनको ये मुद्दा बना लिया है। Well, viewers, you just heard 3 of the residents and there's several more. Let me bring in Govind Gujjar as also Padmaja Joshi. Of course, we also have video evidence which we would like to show you, viewers, of what it actually felt like being trapped inside that home when riotous mobs are trying to break down your doors. That for just a few more moments. But let me first bring in Govind Gujjar and Padmaja Joshi. Govind, we've heard Durgesh Pawar Saab, who's a resident who wants to leave. He said, I don't want to live here. I have been targeted not once but several times. I have put up a for sale sign.
on my house, and we can see those pictures to the corner of your screens, viewers, where he's writing on his wall that this house is on sale. Ye ghar bikau hai. Paru, a resident, also wants to leave. She says the mob came with petrol and burnt down my home. People from other communities target us often. Anita, a resident who wants to leave, says this damage done by people from another community. During festivals, they target the 4 or 5 Hindu homes that are here. Now, Govind ji, कई लोग बोलेंगे कि आप लोग एक या दो लोगों के घर के बाहर एक दो साइंस जो लगे हुए हैं उनको एम्पलीफाई कर रहे हैं, बात का बतंगड़ बना रहे हैं. That's what they will say. You're making a mountain out of a molehill. आप उन लोगों को कैसे जवाब देंगे? आप उनको क्या कहेंगे? ये जो डाउटर सेना है. Rahul, first I would say reporting the situation of Khargone sitting in Delhi or sitting in Bhopal is quite different to in comparison of going to the ground zero. Quite ferocious pictures. जो लोग यहाँ पर हैं उनके साथ पहली बार ऐसा नहीं हुआ है. जब हमने उनसे जानने की कोशिश की, संजय नगर इलाका है, वहाँ 2 कम्युनिटीज हैं, पूरे शहर में 40-60 का रेशियो है 2 कम्युनिटीज का. तो ये क्लैश पहली बार नहीं है, पहले भी कई बार इस तरह के क्लैशेस होते रहे. लेकिन अब जो मजबूरी बढ़ी है लोगों की और लोगों ने अपने घरों पर लिखना शुरू कर दिया है, ये घर बिकाऊ है. जब हम वहाँ पहुंचे और हमने पूरा जायजा लिया मौके का, तो फ्रिज जला दिया गया, कूलर जला दिया गया, बिस्तर जला दिए गए, पूरे घरों में आग लगा दी गई. जो एसपी थी वहां, माफ कीजिएगा, कलेक्टर थी, वो मुआयना करने वहां पहुंची हुई थी. कई लोगों से वादा करके आई है कि आपको मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन वो कहते हैं कि मैं मुआवजा नहीं, हमें जगह दीजिए यहां से दूसरी जगह शिफ्ट होने के लिए. और अंदर जब हम दूसरी कम्युनिटी को भी उनका पक्ष जानने के लिए पहुंचे तो वहां पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ था. हर घर में ताला लगा हुआ था. डर की वजह से दूसरे कम्युनिटी के लोग या तो जा चुके हैं या कई लोग उनमें से अरेस्ट हो चुके हैं. तो ये स्थिति संजय नगर की है और बनस्पत इसी तरह की स्थिति कई जगह खरगोन में देखने को मिली. तो यहाँ पर जो भी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ की स्थिति अभी भी बहुत ज्यादा टेंस्ड है. जरा सी भी अगर लापरवाही, प्रशासनिक लापरवाही होती है तो आगे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ की तस्वीरें बहुत ज्यादा बीभत्स हैं. हमले हुए हैं घरों में, लोगों पर गोलियां चलाई गई हैं. इवन एसपी तक के पैर में गोली चलाई गई, जो उन्होंने सुबह टाइम्स नाउ से एक्सक्लूसिवली बात की और पूरी घटना को बताया, कैसे तलवार लहराई गई जिनसे फिर गोलियां चली. तो ये सब चीजें काफी हैरत में डालती हैं कि एक संविधान से बने हुए देश में क्या ऐसी स्थितियां आ गई हैं कि लोग इतने बेकाबू हो जाते हैं कि ना पुलिस को देखते हैं ना पड़ोसी को देखते हैं. और इस तरह की हमले की तस्वीरें जो काफी डरावनी है पूरे शहर में पसरी हुई हैं. Yes, it's very important to say here, viewers, that we have sanitized a lot of these pictures. This is not an attempt to try and whip up some sort of communal frenzy. No. But certainly, this is an attempt to correct the one-sided narrative that has emerged from Khargone. Now, Padmaja, what have we always been hearing over the last 2 or 3 days? That there is a bulldozer that is running riot in the streets of Khargone, unleashed by Shivraj Singh Chauhan, the Chief Minister. Why? Because he wants to target minorities. The other side, the fact that the homes of the Hindu community, of those who were peacefully wanting to observe their or mark their festival, that story hasn't really been told. A, why is that? And B, of course, what do these pictures, what do these testimonies tell you? One thing is very clear, that there are people, it has been so far said that this was basically a provocation, and that is why people reacted and pelted stones. 3 things that have come out very clearly in Govind's investigation. 1, not only stones were pelted, swords were used, bullets were fired, and this cannot be any spontaneous reaction. This has to be pre-planned, unless there are people keeping swords and guns in their houses in Khargone. That's point number 1. Point number 2, if there isn't fear, if there was only one community targeted, then why are all these people now saying that we are going to leave their houses? At least half a dozen testimonies that Govind himself has got. Point number 3, as far as the bulldozing of houses is concerned, and one
report about how PM Awas Yojana houses were also targeted. PM Awas Yojana itself is only about the grant of a certain amount of money to people who are eligible. That does not, by the way, in any way ensure that it cannot be built. Those houses cannot be built on encroached land. And according to the local official that again Govind has spoken to, she has said very clearly the notices were given, and by the way, people have acknowledged on our camera that notices were given to them about the illegality of their construction even before the Ram Navami violence took place. So as far as the notices and illegality is concerned, that is a separate issue. On the violence itself, the issue is very simple, that it wasn't just stone pelting. There were also swords and bullets used, and this cannot be spontaneous if you've got weapons of this kind, and there is fear leading to exodus. Back to you. Okay, just stay on with me, both Govind and Padmaja. I want to play out the conversation that that Govind had with the DM of Khargone. Now, Padmaja just referred to her, Anugraha. She is the DM of Khargone, and she has come out and said that one particular community has been living in fear. Why? Because they have been subject to bullying, harassment, intimidation, and in this particular instance, violence. Let's listen to this. घरों में बेतहाशा इतनी हिमाकत हो जाती है कि घरों में घुसते हैं, आग लगा देते हैं। मैंने आगे जो है एक दो फैमिलीज भी देखा है जहां दोनों समुदाय के लोग पास पास में रहते हैं और अभी भी रह रहे हैं, यहाँ है, छोड़ के नहीं गए। वो लोग बता रहे हैं मैडम हम तो खुश है, मतलब शांति के साथ रहते हैं, यहाँ दूसरे मोहल्ले के लोग या कहीं और के लोग आके हमारे ऊपर हमला किया है, ये तो गलत है। ठीक है, सो ये जो इनके बीच में समन्वय तो अच्छे हैं, तो ये लोग जो किया है ये बदमाश है। अच्छा, दूसरा इस पर राजनीति तो चली रही, आप देख रहे हैं, क्या एक तरफा कार्रवाई की जा रही प्रशासन की, या जो दोषी हैं, आरोपी हैं, उनको जेन्युइनली रिकॉग्नाइज किया जा रहा है? और जी जो भी कार्रवाई चलती है, मैं आप लोग से ये आश्वासन कर रही हूँ, जितने भी अतिक्रमण हम तोड़ रहे हैं उसकी जो है जैसे मुख्यतः गवर्नमेंट लैंड पर है। Now, viewers, you heard some of the residents, and we'll play their testimonials out again for you in just a few moments, but they described terror. Now we're going to show you what it actually felt like on that particular day, the fateful day, viewers. I'll play out this video. We'll boost the NAT on these pictures. You can hear people wanting to get inside the home while the residents are looking on, petrified. Listen in. Padmaja, let me bring you into this. These pictures Govind has been able to access and verify. Now, these are from a few days ago, of the day really of the Ram Navami procession. What are we seeing here? In fact, Govind is one of the very few people, Rahul, who is on the ground, and this actually shows you why there is an exodus. This has been shot by a resident whose house was being attacked. They were not provoking anyone. They were not trying to shout any slogans. Now they were just sitting inside their house, and they shot this video as a mob descended on them and kept pelting stones as a terrified family huddled inside. Terrified family huddled inside. Viewers, these are unseen videos. You can only get these videos when you actually go to the scene. And there are narratives that are being built up to suggest that the oppressors here are the victims and the victims were the antagonists. That is not quite the truth, viewers. There is always another side to every story, and all we are doing here on Times Now is reflecting that. Now I want to bring back Govind into this. Govind, देखिए जो कहा जा रहा है आपके राज्य में जहां पर आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं और खारगोन में कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन वहां पगला गई है, बुलडोजर लेके अल्पसंख्यकों के घर पे
हमला कर रही है, तोड़फाड़ कर रही है, ये बोला जा रहा है। तो आपने तो कुछ और ही देखा है, आपने एक और साइड ऑफ द स्टोरी आज बताई है। राहुल, ये सीएम शिवराज सिंह चौहान का अपना शौक हो चुका है। पिछले 3-4 महीने से हम देख रहे हैं बुलडोजर चल रहा है। अपने सवाल अपनी जगह हैं, लेकिन जहां हमने ग्राउंड रिपोर्ट यहां देखी हुई है, रामनवमी के पहले दिन खटकापुरा यहां एक मोहल्ला है खरगोन में, वहां एक हिंदू परिवार पर किस तरह से हमला नहीं किया जा रहा। मतलब ये समझिए कि अगर जो गेट हैं, अगर वो आयरन के स्ट्रॉन्ग गेट नहीं होते तो किसी की जान भी जा सकती थी, कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरह से हमलावर एक ग्रुप ऑफ पीपल, एक कम्युनिटी से हो रहे हैं, वो तस्वीर काफी डरावनी है। अगर इस तरह का माहौल बना रहेगा तो क्यों ना कानूनी सख्ती तमाम लोगों पर बरती जाए, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से हो। लेकिन यहाँ खरगोन में ये सब देखने को मिला है और हैरत अंगेज तस्वीरें, एक से बढ़कर एक। मतलब कोई भी कहीं किसी से भी पीछे नहीं होना चाहता है कानून तोड़ने के उसमें, लेकिन यहाँ पर खरगोन में जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं वो काफी डरावनी है, हैरत अंगेज हैं। क्योंकि जिस दिन खरगोन में दंगा भड़का था, एसपी ने खुद टाइम्स नाउ से बात करके ये सारी चीजें शेयर की कि किसी भी तरह से पुलिस ने 5-6 बजे तक सब कुछ कंट्रोल कर लिया था, लेकिन जैसे ही अंधेरा हुआ उसके बाद जो बलवा टूटा है, जिस तरह से आगजनी हुई है और पुलिस को भी संभालते संभालते पसीने आ गए, तमाम टीमें बुलानी पड़ी, एसपी को भी पैर में गोली लगी, तो ये तमाम स्थितियां बनी। तो अब जाकर भले ही शांति का माहौल है, लेकिन फिर भी वक्तन फवक्तन कोई ना कोई हरकत देखने को मिल रही है। जैसे ही रात होती है, कल भी घटना हुई, परसों भी हुई और संभवतः आज भी आशंका है, और यही वजह है कि अभी तक कर्फ्यू नहीं हटाया गया है। चौथा दिन अब होने वाला है खरगोन में कर्फ्यू का, तो ये हालात अभी ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं। हालात ग्राउंड जीरो पे अभी भी बने हुए हैं। द सिचुएशन देयर वेरी वेरी टेंस पद्मजा। ऑब्वियसली देयर इज स्टिल ह्यूज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस in the ability of the state to protect them once they have witnessed this. Absolutely, and you know, their houses, their places of worship have been vandalized, and the most scary is that it doesn't stop at vandalism. If a police officer and a civilian are shot at, this is the state where people feel they are simply not safe anymore. And one after the other, if we play those testimonies again, this is what they are saying. No policeman can be here 24/7 to protect us. If people are armed, if we are being attacked in our own houses, then we simply cannot feel safe. Rahul. Absolutely. This is absolutely the truth, and that's perhaps one of the reasons why these residents are now leaving. Now just listen to all of them and their reasons. This puts into context, viewers, why they are leaving their homes. And now no one can come out and say, oh, these are just isolated incidents and these people are overreacting, they're panicking in the immediate aftermath. Listen to this. सर अब मैं यहाँ रहना नहीं चाहता हूँ। क्यों? सर ये विगत 90 से मेरे साथ, हमारे साथ में बार बार ये घटना हो रही है, बार बार हो रही है। तो कौन लोग हैं जो इस तरह, अब पहले तो आपका नाम बताइए। मेरा नाम दुर्गेश पवार है। दुर्गेश पवार। तो कौन लोग हैं जो इस तरह की हरकत करते हैं? सर ये मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। सामने ये अभी जो प्लाट कटा है, यहाँ पे ये नए सिरे से लोगों बसे हैं। अच्छा। और ज्यादातर यही लोग परेशान। कई लोग ऐसा देखा है हमने, कई लोग लिख रहे हैं मकान। वो इसी कारण सर अब यहाँ से इनकी आबादी ज्यादा हो गई है, और ये वार त्योहार कुछ भी होता है तो भय का वातावरण बन जाता है। ये बताओ कि किन लोगों ने ये सब किया? पूरा तहस नहस देख रहे हैं हम, पूरा प्रशासनिक हमला। पूरे मोहल्ले वाले आ गए थे, एकाएकी का पेट्रोल आखिरी में मेरे घर को जलाया। अच्छा। और मेरे बच्चे और हम परिवार। कौन लोग हैं ये? कौन लोग हैं ये सब मोहल्ले के परिवार वाले, सब मोहल्ला का लोग छे। हम इनका सारा से अंदर छिपा रहे कि भाई ऐसा नहीं होगो, पर आइए ना आखिरी में हमारे घर पर एकदम पेट्रोल डाल दियो, आग लगे। तो उधर से क्या पुलिस वाले भी यार उनके नजर पड़ी क्या मालूम, उन्होंने हमारे घर को बुझायो भी और हमारा ढोने का भी छोड़ा कि भाई किसान मनुष्य टप्पर जड़ोगे ढोल जले जाएगा, तो उन्होंने बचा दियो मकान। अनीता ये बताइए कि आपको पता है क्या किसने क्या कुछ किया? ये यहाँ के मोमिडन आते हैं, सब यही लोग आते हैं, और हर बार हमारा एक बार नहीं 4 बार जब भी करना कर्फ्यू लगा, जब भी हमारे घर उनका नुकसान हुआ, यहाँ से लगा कि ये 4-5 घर उनको ये मुद्दा बना लिया है। Well, Member of Parliament Gajendra Singh Patel from Khargone also with us. Gajendra ji,
धन्यवाद। आप हमसे बात कर रहे हैं टाइम्स नाउ पर। पद्मजा जी भी हमारे साथ हैं। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने दृश्य देखे हैं, इस पे आप क्या टिप्पणी करना चाहते हैं? बिल्कुल, ये जो रामनवमी पर जो घटना घटी है ये बहुत दुखद घटना है। इसके पहले भी कुछ वर्ष पहले भी इस प्रकार की घटनाएं खरगोन में हुई है। और जिस प्रकार से अगर आप लोगों से, जनता से पूछोगे तो हमेशा से मुस्लिम समाज ही हिंदुओं पर पत्थरबाजी करता है। ये इतिहास के पन्नों पर भी है और हमारे खरगोन में कई बार घटनाएं घट चुकी है। और इस बार का जो ये घटना घटी है बहुत निंदनीय घटना है कि राम भक्त अपनी रथ यात्रा चला रहे थे, राम जी का जन्मोत्सव मना रहे थे, अपने अनुसार, अपनी परंपरागत अनुसार वो अपने तिलक पर चौराहे से निकल रहे थे और अचानक उन पर पत्थरबाजी करी और उनको कहीं न कहीं घायल भी किया और कई लोगों के घर जला दिए। अभी आप लोगों ने वहां पर जिनके घर जले उनसे पूछिए आप जी, एक नहीं 4-4 5-5 बार उनके घर जला दिए गए, उनका पूरा सामान जला दिया गया, उनको मारा गया, पेट्रोल बम। गजेंद्र जी, डरावनी बात यह भी है कि वहां पर गोली चली है, एक बच्चे को गोली लगी है, एक सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को गोली लगी है। एक तरीके से न्याय व्यवस्था पर भी फिर सवालिया निशान नहीं लग जाता है कि लोग वहां पर अपने घरों में गोलियां चला रहे हैं, पुलिस वाले पे गोली चल रही है? निश्चित तौर पर ये बहुत, मैंने कहा, दुखद घटना है, क्योंकि हमने भी ऐसा नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी घटना घट जाएगी। पुलिस, गोलियां कहां से आई, पुलिस के एसपी को गोली लग गई, कितनी बड़ी घटना है। मतलब कहने के ये सुनियोजित षड्यंत्र था। पत्थर अचानक हजारों की संख्या में बरसने लगे, लोग हजारों की संख्या में आ गए, गोली चल गई, गोली चलाने का भी कहां से योजना बन गई और एक एक करके क्रमबद्ध मोहल्लों में पत्थरबाजी हुई। पहले तालाब चौक पर हुई, फिर संजय नगर पे हुई, फिर भावसार मोहल्ले में हुई, फिर हमारे आनंद नगर में हुई। तो ये सब तमाम ऐसे टुकड़े टुकड़े में हर आधे एक घंटे में हर जगह पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पत्थरबाजी नहीं, मगर फिर आपने सिक्योरिटी व्यवस्था, पुलिस के दस्ते बल क्यों नहीं आपने वो लगाए वहां पर ड्यूटी पे? इस बात में पुलिस व्यवस्थाएं प्रॉपर की गई थी, क्योंकि जिस परंपरागत रूप से मुसलमान का त्योहार हो, सिख का त्योहार हो, हिंदुओं का त्योहार हो, अभी त्योहार सबके चल रहे थे, कोई दिक्कत उसमें आने नहीं थी और प्रॉपर व्यवस्थाएं, जानकारी के अनुसार व्यवस्थाएं ठीक थी। परंतु हजारों की तादाद में जब लोग, विरोधी लोग खड़े हो जाते हैं और एकदम से अचानक इतनी संख्या में पत्थरबाजी, गोली शुरू हो गई, इसकी जिसके बारे में कोई कल्पना नहीं थी। जी, आप कह रहे हैं कि एकदम तय तरीके से ये साजिश की गई है। जो लोग, अगर आपको अभी खरगोन में देख रहे होंगे, जो अपना घर छोड़ करके जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं, उनको आप एक सांसद के तौर पर क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं इतना भय का माहौल है। हमारे पास वीडियो दिख रहा है जहां पे एक घर के ऊपर पत्थरबाजी की जा रही है, घर में लोग छुप करके बैठे हुए हैं। अपने उन लोगों को आप क्या कहेंगे जहां से आप सांसद हैं, वो भाग रहे हैं? मेरा यही आग्रह, खरगोन नवग्रह की नगरी है और खरगोन पहले शांतिप्रिय शहर भी रहा है। मैं हमारे मुस्लिम समुदाय के लोगों से भी कहता हूँ कि देखो, आप लोग भी यहाँ पर निवास कर रहे हैं, हिंदू समुदाय भी निवास कर रहा है, कई सालों से हम लोग साथ में रह रहे हैं। अगर इस प्रकार का आप वातावरण बना रहे हैं तो इसका परिणाम गंभीर होगा, क्योंकि हिंदू समुदाय के लोगों में भी आक्रोश है, क्योंकि उनका, हमारे जहाँ भगवान पुरुषोत्तम राम जी का जन्म हुआ, उस जन्मोत्सव के कार्यक्रम पे आपने पत्थरबाजी करी। नहीं, वो तो हम उस पे तो हम देखिए, उस पे तो हम बात करेंगे, मगर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि उनको, ये जो लोग हैं जो अपने घरों को छोड़ के जा रहे हैं, उनको आप कैसे, उनको आप आश्वासन क्या देंगे? ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैं कह रहा हूं, मध्य प्रदेश की सरकार और हम सब लोग इस प्रकार के प्रताड़ित, जो जिस प्रकार से आपको हमला हुआ है, ऐसे सब लोग के साथ में खड़े हैं। हम उनको पूरे मदद करा रहे हैं, हम उनको भोजन, आर्थिक मदद, और उनके साथ में हमारा पूरा समुदाय। मगर वो तभी भी छोड़ के जा रहे हैं अपने घर। और गृहस्थी में आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं, क्या यहाँ पर आपके खरगोन में क्या लोग अपने घरों में तमंचे और तलवार रख के जिंदगी जीते हैं? ये कैसे आ गए इनके पास ये तमंचे और तलवार, ये बताएं। मैंने ये कहा कि प्रशासन को भी कोई खबर नहीं, ना होश। जिस दिन 10 तारीख थी, 10 तारीख को जो घटना घटी, ये तमाम पेट्रोल पंप आ गए, बड़ी घटना होने वाली थी, ये बनाए गए और लंबे समय से योजना बनी होगी। गोली चली गई, लंबे समय से योजना बनी गई, बाहर के लोग हमारे खरगोन में आ गए, यानी कि योजनाबद्ध तरीके से। भाई, बड़ा षड्यंत्र, इस राम रथ यात्रा को कैसे रोका जाए, राम भक्त के लोगों को कैसे उनको डैमेज किया जाए, ये लंबा षड्यंत्र समाज के लोगों का है। क्योंकि ये जो देश, सभी धर्म के त्योहार मनाए जाते हैं, परंतु जिस प्रकार से पत्थरबाजी करे ये लोग कर रहे हैं, वो बहुत गलत कर रहे हैं।
और इतने को एहसास करना चाहिए बहुत गलत हो रहा है, हमको भुगतना पड़ेगा। जी, बड़ी तस्वीरें ये भी आ रही हैं वहां पे। एंड अनदर बिग इनफैक्ट स्टोरी दैट वी गॉट फ्रॉम द ग्राउंड is that a policeman, the SP in fact, and a civilian, we've accessed a picture of a young boy who on the day of Ram Navami during the procession was shot at, has received a bullet injury in his head. This is Shivam, injured during the riots, shot in the head. So anyone who is saying, and a final question to you Gajendra ji, कि अभी और सुरक्षा चाक चौबंद की जा रही है, क्या आश्वासन आप अभी दे सकते हैं कि जो लोग अभी तक अपनी छतों के ऊपर आपकी पुलिस ने पाया है पत्थर रखे थे या तमंचे थे घर में या फिर तलवार लेकर के आए थे, ये भी एसपी, आपके खुद के एसपी ने बोला है कि कुछ लोग मास्क लगा के तमंचे लेकर तलवारें लेकर के घुस गए थे क्राउड के बीच में, अब आपकी सिचुएशन काबू में है? निश्चित तौर पर अभी जितने शहर के वीडियोस मिले हैं, फोटोज मिले हैं, उसमें सभी लोग पहचाने जा रहे हैं। मास्क चेहरे पर उन्हें कपड़ा बांधा हुआ है, फिर भी इनकी पहचान हमारे प्रशासन के द्वारा की जा रही है। जो भी इसमें दोषी है वो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश शांति का टापू है, और इस प्रकार की घटना अगर हो रही तो जो भी इसमें दोषी है उसको सर्चिंग चल रही है। हर मोहल्ले में, हर जगह पर पुलिस प्रशासन और पूरी सिविल ड्रेस के माध्यम से नए लोगों की तलाश भी की जा रही। कल भी एक होटल से करीब 25 लोगों को, बाहर के लोगों को पकड़ा गया, और भी कोई जानकारी प्रशासन के पास में है। मेरा सिर्फ यही आग्रह है कि जो लोग बाहर से आए हैं वो भी शांति बनाने का प्रयास करें और वो सामने आ जाए, नहीं तो परिणाम मध्य प्रदेश की सरकार जो अभी करना चाहती गंभीर परिणाम होंगे। मेरा आग्रह है कि हम शांति चाहते हैं। जिस प्रकार से आपने लोगों पे प्रहार किया है उसका परिणाम सरकार जो भी तय करेगी, मुआवजा तय करेगी, वो तो करेंगे, परंतु इस प्रकार का अन्याय नहीं चलेगा। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो भी खुलकर सपोर्ट करें। अगर वो नहीं कर पाएंगे तो जिस हिसाब से कानून की व्यवस्था है उसका निर्णय होगा। ओके, गजेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। Two big things that the member of parliament from Khargone in fact is saying. One is that there were people from the outside. This, by the way, is also something that the DM said, that the locals told her that we want to live in peace. People of all communities want to coexist peacefully, and yet you have people from the outside who came and tried to instigate. Second is that this was a pre-planned conspiracy. That's what the member of parliament is saying. And in fact, quite scary visuals, Rahul, which are coming in now of active stone pelting taking place, of places of worship that have also been desecrated, and of people who have been shot, including a young boy. Absolutely. These are pictures from ground zero, viewers. Nothing of this is being made up by anyone. गोविंद, जो अभी ग्राउंड पे क्या कार्रवाई हुई है, जरा आप हमें कुछ इसके बारे में बता सकते हैं गोविंद जी? क्या कार्रवाई हुई है अभी ग्राउंड पर? देखिए, ग्राउंड पर कार्रवाई की अगर बात की जाए तो 3 दिन से लगातार सबसे पहले तो एनक्रोचमेंट की जो कार्रवाई हो रही थी उसमें तेजी इस चीज को लेकर आई कि जो पिक्चर्स और वीडियोस में रिकॉग्नाइज किए गए जो चेहरे, उनके मकान, दुकानें तोड़ी गई। और जो कार्रवाई जो की गई थी वो 2 तरह से की गई है कि एक तो एनक्रोचमेंट जो ड्राइव है इनका, डेमोलिशन ड्राइव, वो एनक्रोचमेंट के तहत की गई, और दूसरा इनका एक वसूली अधिनियम है 2021, उसके तहत भी कार्रवाई की गई। हालांकि आज बुलडोजर नहीं चला है, लेकिन पिछले 2-3 दिन से लगातार बुलडोजर चल रहा था और 100 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है और गिरफ्तारियां भी हुई हैं। तो ये अभी तक कार्रवाई के तौर पर किया गया, चूंकि अभी माहौल पूरी तरह से टेंस्ड है। इन्वेस्टिगेशन में सारी चीजें वेरीफाई और री-वेरीफाई की जा रही हैं। यही वजह है कि अभी कर्फ्यू लगा हुआ है पूरी तरह से, और पुलिस और जो तमाम जो बड़े अधिकारी हैं इंदौर डिवीजन के, वो तमाम यहाँ डेरा डाले हुए हैं और सारी चीजों को स्क्रूटनाइज कर रहे हैं। उसके बाद फाइनल रिपोर्ट अपनी कंपाइल करेंगे और उसमें ये सब चीजें निकलकर सामने आएंगी कि फाइनली पुलिस ने इस पूरे मसले को लेकर क्या कार्रवाई की है, कितनी गिरफ्तारियां की हैं, कितने लोगों को हिरासत में लिया है और कितने लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो ये थोड़ा सा वेट एंड वॉच रखना होगा इसके लिए।
Gee, stay with me, Govind. In fact, we also have Dr. Hitesh Bajpai, spokesperson of the BJP in Madhya Pradesh, and Gokul Chandran, political analyst, joining us. Let me inform you, Gokul Chandran, and I want to again play the picture of Shivam Shukla, just 16 years old, with a bullet injury in his head. His sister, we're now being told, is going to be married day after tomorrow, Gokul Chandran. And it is now being said that people who were carrying out the procession were the aggressors. Then how does Shivam have a bullet injury if he's the aggressor? Yeah, good evening, Padmaja. These are very shocking and unfortunate incidents which are taking place, and the pictures and videos which you play out and the ground report by Govind are really eye-openers, and it has to be stopped. It has to be stopped indeed, but who is going to stop it, sir? Just hold on for a second. We've got Jeetu Patwari, President of the Congress in Madhya Pradesh, also with us on the phone line. Jeetu Patwari ji, एक बच्चे को गोली लगी है, एक एसपी को गोली लगी है, लोग तलवार लेकर के वहां पर जो रामनवमी की यात्रा, शोभा यात्रा चल रही थी, उसके ऊपर हमला करते हैं। किसने दंगा भड़काया? जीतू पटवारी जी, कौन होता है और दंगा कौन करता है तो प्रशासन को पता था, जांच का विषय होता है, शासन प्रशासन इसका निर्णय लेता है। इसमें मैं और आप तय थोड़ी कर सकते हैं किसने दंगा किया। सर, वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक मैं परिवार, वीडियो नहीं देख पा रहा हूं, मेरे से फोन पे बात होती है। मैं आपको बता देती हूँ, एक परिवार घर के अंदर छुपा हुआ है, बाहर से भीड़, उन्मादी भीड़ उनके ऊपर पत्थरबाजी कर रही है। दंगा कौन भड़का रहा है, उन्मादी भीड़ या जो छुप के घर में बैठा है? दंगाई जो होते हैं वो प्रशासन का काम है, ऐसे लोगों को कार्रवाई करे। दूसरी बात यह है कि जिस तरह की भावना है, जिस तरह का मध्य प्रदेश है, जिस तरह के हम सब परिवार के लोग मिलजुल कर रहते हैं, शांति का टापू है, उसमें कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में शांति रहे इसकी पक्ष कर रही है। हमने अपना विज्ञप्ति जारी कर चुके। जीतू जी, शांति तो हर कोई चाहता है, पर अगर कोई पत्थर मारेगा और गोली चलाएगा तो शांति कौन बिगाड़ रहा है? तो पत्थर मारेगा, ये तो आप तो ऐसी बात कर रही है कि आपने पत्थर चला दिए, मैंने चला दिए। जो मैंने कहा कार्रवाई करे प्रशासन, जिनमें वो जांच का विषय है, प्रशासन को पता है, सरकार को पता है, विपक्ष को कैसे पता है? सर, कम से कम ये तो बता दीजिए कि अगर आपने शुरू में ही बोल दिया कि कार्रवाई बदले की भावना से की जा रही है, कल जब मध्य प्रदेश प्रशासन ने कार्रवाई की तो राहुल गांधी जी ने ट्वीट करके बोला कि मामा का बुलडोजर नफरत पर चलता है। मैडम, पहले आप आपके शब्द को वापस लें। कांग्रेस पार्टी ने इसमें वक्तव्य जारी किया है कि हम किसी भी प्रकार के उपद्रवियों को, प्रशासन उपद्रवियों पर कार्रवाई करते हैं तो कोई बात नहीं, निष्पक्षता होनी चाहिए। निष्पक्षता का वर्डिंग ये होता है। डॉक्टर हितेश बाजपेयी, कांग्रेस कह रही है हम तो शांति चाहते हैं, हम शांति के साथ, कांग्रेस का हाथ शांति के साथ। देखिए, आप देखिए ये कितना पॉलिटिकल मसला है जो हम बार बार कह रहे हैं। देखिए, एक बात हमको और समझनी, हिंदू मुस्लिम का नहीं है। आपने कलेक्टर को भी सुना होगा, वो बता रहे हैं वो लोग साथ साथ रहते हैं, लेकिन कुछ लोग आते हैं। ये कुछ लोग कौन है? देखिए, आप समझिए, दिग्विजय सिंह मास्टर है इस गेम, सिमी, PSI, गुफा, JMB सबके प्रोटेक्शन में खड़े होते हैं आके। अभी एक दिन पहले जेल में मिलने गए हत्या के प्रयास के एक व्यक्ति से, मैंने आपको भी भेजा है इस बात को लेकर। लेकिन ये देखिए, एक बार भी ये नहीं कह रहे कि दंगाइयों ने बुरा कहा। वो आप कर बोलते हैं कि आपने सबसे देखे आप देखिए, सीनियर एक्स मिनिस्टर इज टॉकिंग, मतलब रियलाइजेशन कुछ है ही नहीं। भाई, एक बार तो आप बोलो कि जो पत्थर फेंक रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे, नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, एंड that is the basic attempt over here, not to take sides, not to say that we want to communalize this or create tensions or animosity, only to put out actual videos, facts, just so that you can make up your mind. Padmaja, of course, no one knows the identity of the people who have carried out these attacks. It's not necessary. And we've also heard a large number of voices this evening. The MP himself, Mr. Gajendra Singh Patel, was telling the channel, telling our viewers that, look, these people could have been outsiders. We don't know who these people are. But they certainly ended up targeting one community disproportionately over the other. Now there has been a crackdown. Times Now doesn't in any way condone this crackdown using bulldozers, etc., because due process must be followed and justice must be also seen to be delivered. So viewers, however,
it becomes important to correct the picture, to put both sides of the story out there so that all of you can make an independent judgment of the facts. We're taking a short break.